A very good morning and Jai Hind students. Let's continue with chapter number 1, that is nature and significance of management. Let's take a quick recap. What we have learned in the previous lecture was about the features of management. There are total 7 features of management which we have already discussed in the last lecture. Right? Okay, so today we will be starting with the objectives of management. Okay, what are the objectives? Let me tell you, the objectives are the goals towards which the activities of business is directed. See, once you have planned something, right, you need to follow a particular activity. What was that process is about planning, organizing, staffing, directing and controlling. You need to follow this process. Okay, while following this process, it is very much clear to you that you need to accomplishment your objective. Okay, so objective are the goals towards which the activities of business is directed. आपको पता है आपको क्या क्या काम करना है to achieve your objective, to achieve your goal. ठीक है. So they serve as standards against which the performance is measured and assessed. अगर आपके पास कोई objective ही नहीं होगा, if you are not planning something, fine. If something is there in your mind, that means some objective. You are standing there with some objective. And वो objective पूरा कैसे हुआ, कितना हुआ, ये आप उसके end result से पता कर सकते हो. ठीक है. For that you need to measure the performance. You need to access the performance. आपने जो चाहा आपको ऐसा मिला, जो आपके गोल थे, you have achieved. Are you successful to achieve those goals or not? ठीक है. Do you successfully achieved those goals or not? So let's start with the objectives of management. There are 3 objectives of management, right? The very first one is organization objective, second is social objective, and third is individual objective. So it is very much clear with these 3 points as well. Organization means that particular organization जहाँ पर आप काम कर रहे हो with an objective. Social means society, for the society. Individual person, the human. ठीक है, those who are working with you. All right, so there are 3 objectives of management: organizational, social and individual. So we will be starting with organizational objective, right? Okay, in organizational objective, I hope it is clear to everybody. Yes. Okay, organizational objective. The main purpose of organization objective is to utilize human and material resources. See, there are 2 terms. If you have some plan and you wanted to start a business, let's suppose आपका plan है, I've already given this example, ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप you need to utilize the human. आप अकेले इसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो. You need to find out those capable and skilled people, those who knows the process how to manufacture this pen. इस पेन को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं, क्योंकि आपके पास आइडिया है, आपके पास आपका बजट है, लेकिन यू नीड टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज अलॉन्ग विद दैट. ठीक है, यू नीड टू रिक्रूट पीपल, यू नीड टू डू दी स्टाफिंग हियर. एंड मटीरियल रिसोर्सेज, मटीरियल मीन्स आपके पास यू हैव द थिंग्स, यू कैन अरेंज दिस क्रेप, यू कैन अरेंज दिस ये कैप ऑफ द पेन. ठीक है. All right, the nib, the refill, you can arrange each and everything. That is your material. Okay, so the main purpose of any organization is to utilize the human and material resources, the people you hired and the material you are having. All right. Why? To the maximum possible advantage to fulfill its economic objectives. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हर किसी का मेन लॉजिक होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न मनी. ठीक है. सो अर्न मनी सेकेंडरी इसलिए हो जाता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू यूटिलाइज ह्यूमन. आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं आपको उन्हें टैकल करना है, उनसे काम निकलवाना है. ठीक है, बिकॉज एज मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स. जो आप चाहते हो आपको उन तक पहुँचाकर अपना काम करवाना है. एंड द मटीरियल्स यू आर हैविंग, यू नीड टू यूटिलाइज दोज मटीरियल एज वेल.
ठीक है, ओनली देन यू कैन फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑल राइट, अच्छा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के, कैसे फुलफिल होते हैं, क्या होते हैं पहले तो, द सर्वाइवल, द प्रॉफिट एंड द ग्रोथ, दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। कैसे, देखो सर्वाइवल, सबसे पहले यू हैव प्लान समथिंग, ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि यार मुझे सर्वाइव कैसे करना है, मेरा सर्वाइवल मार्केट में बहुत ज़रूरी है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल बिकॉज मैनेजमेंट मस्ट ट्राइव टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। लेट्स सपोज ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन आपने, चलो पेन को छोड़ दो, हम सैनिटाइज़र लेते हैं, ये सैनिटाइज़र, ठीक है, ये सैनिटाइज़र इसका कॉस्ट है, लेट्स सपोज इसका कॉस्ट है 70 रुपीज़, ठीक है, आपको पड़ा है, आपने अपनी ह्यूमन रिसोर्स, आपने ह्यूमन यूटिलाइज़ किए इसके लिए, अपने मटेरियल को यूटिलाइज़ किया, ठीक है, वो सब यूटिलाइज़ करके आपको ये सैनिटाइज़र कुछ 70 रुपीज़ का पड़ा है, ठीक है। आप मार्केट में देख रहे हो बहुत सारा आपको कंपटीशन मिलेगा, बहुत सारे और डिफरेंट ब्रांड्स होंगे सैनिटाइज़र्स के, ठीक है, हु ऑलरेडी आर इन द मार्केट। सो आपको एटलीस्ट आपका सर्वाइवल कब होगा, जब व्हेन you earn the enough revenues to cover the cost of operation of this sanitizer। कम से कम 70 रुपीज़ का आपसे बनाए तो आप उसको 75 का तो बेचो मार्केट में, सर्वाइव तो कर पाओ आप मार्केट में पहले, ठीक है। आप सर्वाइव कर गए तो अल्टीमेटली आप उसके सेकंड ऑब्जेक्टिव पे हो गए, दैट इज़ प्रॉफिट, बिकॉज मियर सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर बिजनेस। आपने बनाया 70 का है, सॉरी आपने बनाया 70 का है और आप 72 का बेच पा रहे हो, बिकॉज आपको पता है कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं मार्केट में और 70 रुपीज़ में भी बहुत अच्छा मिल रहा है मार्केट में किसी और ब्रांड का, तो 72 रुपीज़ में भी आप इतना कुछ ऑपरेशन में इसके बिजी हो, सो वो भी मतलब आई मीन मियर सर्वाइवल इज़ नॉट इवन इनफ। मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द बिजनेस मेक रीजनेबल प्रॉफिट। आपने एटलीस्ट ये 70 का बनाया है तो आप कम से कम इस सैनिटाइज़र को 80 रुपीज़ का तो सेल आउट करो, सो दैट आपको प्रॉफिट, कुछ तो प्रॉफिट हो, बिकॉज प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कॉन्टिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन। आपको पता है कि अब आपका मार्केट में ये हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, एवरीबडी मतलब इट इज़ वेरी मच इन डिमांड, एंड आपका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पड़ रहा है दैट इज़ 70 रुपीज़ और आप पास को उसको मार्केट में इजीली 80 रुपीज़ का सेल आउट कर रहे हो, राइट। तो दैट मीन्स अब आपको एक श्योरिटी हो गई है कॉन्टिन्यूअस सक्सेसफुल ऑपरेशन की, कि आप अब रनिंग में काम कर सकते हो, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट इन दिस। पहला क्या था ऑब्जेक्टिव, टू सर्वाइव इन द मार्केट अमंगस्ट वेरियस कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। देन कम्स ग्रोथ, सर्वाइव कर लिया हमने, प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस टू ग्रो इवन। अगर मार्केट में रहना है तो मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई मीन ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस मे बी मेजर्ड कैसे, हाउ, लेट मी टेल यू द फ्यू पॉइंट्स। ग्रोथ कैसे मेजर्ड की जाती है, विद द एनुअल प्रोडक्शन, with the annual production, sales turnover, and number of employees. There are many other reasons, ठीक है, बट हम ये डिस्कस करेंगे अभी। एनुअल प्रोडक्शन आपने बनाना स्टार्ट किया था किससे, आपने बनाना स्टार्ट किया था कि यार मैं 500 मार्केट में निकालता हूँ, लेट मी जस्ट हैव अ चेक कि मैं सर्वाइव भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, राइट। आप सर्वाइव भी किया, आपने प्रॉफिट भी किया, बट उसके बाद आपको यू जस्ट लास्ट में, हमें पूरे साल हमने काम किया, हमें लास्ट में हमें एनुअल प्रोडक्शन से पता चला कि 500 से इतनी डिमांड इसकी सैनिटाइज़र की बढ़ गई कि वो 500 से हम 1500 पर पहुँच गए। सो आपकी एनुअल प्रोडक्शन से यू गेट टू नो योर अबाउट योर ग्रोथ, राइट। देन सेल्स टर्नओवर, प्रोडक्शन बढ़ी तो ऐसे ही सेल्स टर्नओवर बढ़ी, ठीक है। काम ज़्यादा हुआ तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपको हायर करने पड़ेंगे सैनिटाइज़र बनाने के लिए, ठीक है। सो दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस में बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स, annual production, like sales turnover, your number of employees, capital investment, right? These are the points through which you could get to know about the growth of any organization. All right. Okay.
So here we have discussed the economic objectives of a business, that is survival, profit and growth. And this was all about the organizational objective. किसी भी organization के बेटा objective होता है एक तो market में survive करना amongst various competitors, प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि सर्वाइव कर लिया बैठ गए आपको पता है कि आपके मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अर्न सम प्रॉफिट, कम से कम आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन तो निकल जाए. उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ करना. ठीक है, अभी आपके पास 10 यहाँ तक आपने 10 लेबर को हायर किया है, आप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, इतना काम आपका बढ़ जाए कि आपको 20 लेबर अपॉइंट करनी पड़े. तभी आपको पता चलेगा कि यू आर ऑन अ ग्रोइंग पोजिशन, your business is on a growing position, right? Okay, now come to another one, that is social objective. What is there in social objective? अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ना सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लाइक मैनेजमेंट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, तो कुछ तो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं. सच ऑब्जेक्टिव्स आर इंटेंडेड टू डू सोशली यूजफुल थिंग्स, जैसे हेल्थ के एरियाज़ में सेफ्टी, एनवायरनमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स देखने चाहिए सोसाइटी के, अपने एम्प्लॉयज़ के, है ना. तो दे इंक्लूड दीज फॉलोइंग पॉइंट्स. एंड व्हाट आर दोज पॉइंट्स? लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ओके.